या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती तो जिस लोग बंदे ने वो एक यूएस का एक पुलिस ऑफिसर था उसको दबा दिया था उसी की बेस में इंडियन का एक रियल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ इंडियन को मार दिया था तो उसमें इतनी प्रॉब्लम आई एक इंडियन फैमिली को वहां पर जस्ट वो अवनीश जी हम प्रोग्राम स्टार्ट करें क्या? जी 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 आप स्टार्ट करिए. Okay, thank you so much. At the very outset of World Earth Day, I cordially welcome all the eminent speakers. Today we have with us Srimati Kiran Bala Pandey, who's the former Deputy Director Education UP, Mrs. Anjana Khilani, a renowned garden consultant and founder of Amlan Bagh, Dr. Anita Tomar, Scientist E, Forest Research Center for Eco Rehabilitation, Prayagraj, and we were supposed to have Deep Pandey sir also with us, who's the principal chief conservator of Forest Development Rajasthan, but right now because of some urgent meeting he is unable to join us as of now, but he might join us sometime later. On the very outset of this World Earth Day celebration, I cordially welcome all the eminent speakers of the session. As we all know, World Earth Day is celebrated every year on April 22nd by individuals all across the world. Earth Day marks the anniversary of the modern environmental movement in 1917. It's the most renowned day for environmental action and is known to engage governments, businesses, and citizens to focus their efforts on pressing environmental issues. According to the scientists throughout the world, we are on a downward slope. Our fresh waters and oceans are being polluted, soils are eroding, rivers are running dry, temperature is rising, coral reefs are dying, and so many plant and animal species are becoming extinct in such a small span of time. This is all attributed to the ever-increasing population, in addition to the ruthless exploitation of our natural resources, which quite frankly is creating our own scenario for disaster. We are entering an environmental age where whether we like or not, we will have to make environment as a top priority. Our planet's alarm is going off and it's time to wake up and take action. We are already struggling amidst one of the largest global health calamity. The COVID pandemic has taken a toll of so many precious lives and badly affected our health and global economy. But this enormous unintended experiment offers immense opportunity to study the dynamics of our environment and work out feasible policies and practices for restoration of the same. Today, we have technologies that allow us to use renewable energy. Solar technologies are real and proven and in use now. Wind power is also a mature technology. Biomass is also a source of energy which shows quite a lot of promise. But unless we insist upon their use, technologies like this will never become part of our daily lives. At the very outset, the theme for this webinar is basically decided
And we can say that the theme for this World Earth Day, therefore, is Restore Our Earth. I too personally believe that environmental protection drive is not just to be focused for one day. We need to stay proactive and fight for the cause of environmental protection all around the year. Just as planting a tree, planting a sapling on 22nd April won't do. Proper care needs to be extended throughout so that the sapling can survive and be eventually transformed into a full-fledged tree, which purifies the air, nearly removing 22 kilos of CO2 emissions. Active involvement of concerned departments is required in this regard so that experience and expertise of all those experts can be utilized, and that can be helpful in solving problem solving projects which can provide concrete solutions to mitigate various environmental issues. With these words, I congratulate all of you and I welcome you to this event, and I hope this is going to be really fruitful and useful for all of us. With these words, I cordially invite the next speaker of the session, Kiran Bala Madam, to kindly say a few words. Ma'am, are you there? You can please unmute yourself. Hello. Hello. Kiran Bala Yes. Madam is perhaps a person who does not need any introduction. She herself is a person, I'm going to share some pictures of her garden, and everyone is going to be astonished that how beautifully she's maintained the garden, how with the help of waste materials she has made a totally different atmosphere. So that is the learning we have to have from her. And today on this very platform, we are having ma'am with us, and she's going to share her views and the way she's basically able to perform and adopt that in the gardening processes. So ma'am, ma'am, may I have you please? Yes, मैं बोलूं? Yes. Yes ma'am, you can start please. ऐसा है कि आज विकास की होड़ में बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ उत्पादन तो जो चाहते हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ फायदा भी बहुत चाहते हैं। और इस वजह से हम कुछ चीजें आपको पहले बताना चाहेंगे। हम साइंटिस्ट या तो नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हमें बहुत कष्ट देती हैं। जैसे मैं अगर जब सड़कों पे जाती हूँ, देखती हूँ, तो जो पेड़ जो काटे गए हैं बहुत से, और ये हमारे यहाँ बहुत से इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। जैसे विदेशों में पेड़ पूरे उखाड़ दिए जाते हैं, यहाँ एक साथ पेड़ 2500 काट दिए जाते हैं, और जो हम एक दिन में पौधा तो तैयार नहीं होता, वो तो 40-45 साल में इतने बड़े बड़े पेड़ तैयार होते हैं। तो उसको जब हम लोग सड़कों पे निकलते हैं तो सब हरियाली के बजाय सब सूखा सूखा दिखाई देता है, तो इससे हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। नंबर 2, जो ये मेट्रोज जो चली हुई हैं, इस मेट्रोज वगैरह में जो धरती का सीना चीरा जाता है, उसको इतने गहरे तक ले जाया जाता है, उसमें कितनी चीजें उसमें आती हैं, ये सब चीजें उसकी बनती है कितनी सारी। तो पृथ्वी के हमारा जो बड़ा शक्ति है, ये तो क्षरण हो रही है। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो किसानों की धरती जो है वो सब विकास के लिए ली जा रही है। पहले वहाँ खेती होती थी, अब वो सब चीजें एकदम सड़कें बना के विकास में तैयारी करी जा रही है। इसके साथ हमारे पास जो पानी की शुद्धता के लिए आरओ जो चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी हमें कष्ट देते हैं। उसमें बड़े लोग ऐड भी देते हैं, लेकिन उससे जितना पानी यूज होता है उससे ज्यादा तो पानी व्यर्थ हो जाता है। तो हम जहां भी जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि पहले आप इसको, जो पाइप से पानी व्यर्थ हो रहा है, इसमें आप कुछ दूसरा पाइप लगा के इससे कपड़े धुल लीजिए, या इससे आप क्या कहते हैं सिंचाई का काम कर लीजिए, इसको बेसिन में लगा दीजिए, ताकि आरओ का जो व्यर्थ पानी जाता है ये आपका सब बच सके। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक का जो सबसे बड़ी आजकल हम लोग सामने प्रॉब्लम आ रही है, प्लास्टिक की है। और प्लास्टिक की जो कड़े हैं वो आपको कचरे जो हैं, हेलो, We can slowly go on. हेलो
This is Meena Narwani. You're please requested to mute yourself. ये Dr. Deep Hello? Narayan sir has joined meeting. हेलो करिए, पता नहीं कैसे। Yes, ma'am, you're audible. हेलो Yes, Hello? ma'am, you're audible. अच्छा, तो जो प्लास्टिक की चीजें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के लिए आजकल ये आ रही है। हर चीज तो जो खाने का पूरा सामान है वो प्लास्टिक में आता है, कहीं रेस्टोरेंट में का सामान आता है वो प्लास्टिक में आते हैं, सब डिब्बे में आते हैं, पन्नियों में आते हैं। तो हमने इसके लिए हम कभी कोई सामान बाहर फेंकते नहीं है इन सामानों को। और जो छोटे छोटे डब्बे आते हैं उनको हम कलर करके उसमें छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं। तो वो काफी मतलब उसके अच्छा कलर करने के बाद मेरा ख्याल है उसके जो प्लास्टिक की कणे होते हैं इधर उधर जाने वो भी बच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो प्लास्टिक की रैपर ऊपर आ जाते हैं उनको भी लपेट के हम उसमें हमने जैसे सूखे पेड़ उनमें लपेट के और थोड़े थोड़े पौधे उसमें टांग दिए तो सुंदर भी, लाइटिंग लगा दिए तो डेकोरेट भी हो जाते हैं, वो भी लगाते हैं। बॉटल्स हैं उनको भी हमने बॉर्डर्स बनाई हैं, कैरियों की बॉर्डर्स बना दी हैं प्लास्टिक से, बॉटल से, छोटी छोटी बॉटल से। और बड़ी बॉटल को तो काट वाट के उसमें हैंगिंग करके उसमें डिजाइन डाल के बना दिया है। छोटे छोटे जो है डिब्बे आते हैं उन सबको भी कलर करके ताकि वो डेकोरेटिव भी हो, अच्छे भी हो। पाइप्स जो हैं वो भी उनको काट के उसके अंदर मिट्टी और सॉइल डाल के उसमें पौधे लगा के वो भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। और गमले में रखने के काम में, डेकोरेशन में भी काम आते हैं। जो न्यूट्री चॉइस के जो छोटे छोटे जिसमें बिस्कुट आते हैं उसमें भी मैंने पौधे लगा रखे हैं, तो वो भी काफी ग्रीनरी वाले जो लटकने वाले हैं तो उससे काफी खूबसूरत हो जाते हैं और निकलते रहते हैं। और प्लास्टिक की जो बाल्टियां हैं, फव्वारे हैं, इन सबको भी कटिंग करके और इन सबको देख लेते हैं। और ये उसमें सब में पौधे ही लगाती हूँ। और जो रैपर्स आते हैं ना, जैसे आपके खाने के सामान जिसमें बेसन है, सूजी है, ये सब जो आते हैं इन सबको भी इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें मिट्टी भर के पौधे लगा देते हैं। तो कोई भी चीज बाहर फेंकते नहीं है। थर्माकोल के जो उसमें जिसमें सामान आता है उसमें भी मिट्टी उट्टी पौधे लगा देते हैं, काफी खूबसूरत लगने लगते हैं वो। और उसमें कहते हैं ये पन्नियां जो होती है ना, पतली पतली पन्नियां, इनको फाड़ के पतली पतली और चोटी की तरह से हम इसको गूंथ के रस्सियां भी बना देते हैं, जिससे कि तो कोई भी चीज प्लास्टिक की हम बाहर नहीं फेंकते। और सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक के कण है यही कचरे जो है जाके नदी में और समुद्र में सब इसके प्रदूषित होते हैं। और ये बहुत तेजी से कम मतलब कई उसमें चले जाते हैं लोगों से। और ये उड़ उड़ के जो आज हम जो कोरोना के माहौल में चल रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण यही है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एयर में जो ये प्रदूषण हमारे आ जाते हैं, वायु प्रदूषण है, जल, हम लोग एक एक दिन जो है ये जल प्रदूषण, जल दिवस मना लेते हैं, पृथ्वी दिवस मना रहे हैं आज कोरोना के द्वितीय लहर में। और ये क्या आप कहते हैं मृदा दिवस मनाते हैं, प्रदूषण दिवस मनाते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि हम इसको किसी एक चीज में एक दिन के लिए ना रखें। इसी गतिविधि इंसानियत को जो है, इंसानों के द्वारा जो इसको प्रदूषित किया जा रहा है उनको सतर्क होना पड़ेगा और अच्छी तरह से देखना होगा कि हम एक दिन खाली जल दिवस मना के या प्रदूषण दिवस मना के या पृथ्वी दिवस मना के अपने को संतोष न कर लें। हमें प्रतिदिन इसके लिए देखना पड़ेगा और उसमें अपनी भागीदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए पृथ्वी हमारी माता है और हम लोग उसके पुत्र पुत्री हैं। तो हमें तो उसकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाना ही होगा। और आज हेलो ये जो कचरे नदियों में और समुद्र में, जब भी सबसे पहले हम लोग समुद्र की प्रार्थना करी थी, पृथ्वी की प्रार्थना करी थी, तो ये जो कचरे समुद्र में और नदियों में जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इसके कण जब हवा और लहरों से टकराते हैं तो बहुत छोटे छोटे कण हो जाते हैं और हवा में जाके सबसे पहले वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले तो हरियाली अपनी मेंटेन करनी है, पेड़ पौधे इतने ज्यादा लगाने हैं कि अगर हम 2500 काटते हैं तो उसको काटने के पहले हमें सोचना चाहिए कि हम इतने वर्षों की मेहनत जो है एक साथ एक दिन में खत्म कर देते हैं, तो काटने के बजाय इनको शिफ्ट किया जाए।
और कि एक जगह से दूसरी जगह लगा दें ताकि हमें उस अपने जो वातावरण है वो हमारा शुद्ध होता रहे, हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। और कहते हैं ऑक्सीजन की आज कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। तो पेड़ लगाना और उसको मेंटेन करना, पौधे लगाना, ये इतनी जरूरी है कि हर व्यक्ति को, ये नहीं कि खाली जो आप सरकार में लोग बैठे हैं वही देखें, इसमें जनता के प्रत्येक हर घर के हर प्राणी को सजग होना पड़ेगा, तभी हम अपने पृथ्वी को बचा सकेंगे। और हमारी पृथ्वी जो है वो शुष्क होती जा रही है, जल को बचाने के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इन सब के लिए हम लोग को सजग होना पड़ेगा। और सबसे पहले जो भी विकास के लिए हम योजनाएं बनाए, उसके पहले हमें उसके परिणाम पर सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आएगा, कि हम इसका अगर परिणाम हमारा पहले, तो इसलिए हमें इसके लिए पहले उसके परिणाम के अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसके साथ हमें उस कार्य की प्लानिंग करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझती हूँ अर्थ दिवस पे हम लोग अपने संकल्प लें आज इस बात की कि हम हर दिन जो है हर इंसानी गतिविधियों को पर्यावरण से दुष्प्रभावित न होने दें, और इस पर विचार विमर्श केवल एक दिन दिवस पर न करके हम प्रतिदिन अपने को इसमें समर्पित करें। ये हमारा आई थिंक ओके। नमस्कार, मैं DN पांडे बोल रहा हूँ, जुड़ गया हूँ डॉक्टर साहब। यस सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारे पास आपकी फोटोज एंड पिक्चर्स भी हैं। बट दीप सर अभी जुड़े हुए हैं और वो मीटिंग से अभी आए हैं, शायद उनका आगे भी शेड्यूल टफ रहे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे दीप सर से ही कुड काइंडली स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं जिस जगह हूँ वहाँ मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? यस सर, एकदम क्लियरली ऑडिबल है जी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब, आपने मुझे याद किया इस मौके पे। और मैं देख रहा हूँ कि आप इसको होस्ट कर रही हैं, और अभी शायद पांडे साहब बोल रही थी, श्रीमती पांडे जी, अगर मैं सही पकड़ पाया तो। यस सर, बड़ी सुंदर बात कही मैम आपने, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। एक बहुत ही आपने ये कहा कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले स्वाति जी, आपने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा उन जगहों के लिए, उन स्थानों के लिए जहां हम रहते और काम करते हैं। तो essentially conservation where people live and work is the kind of theme that we are headed to. जहां तक इस वर्ष के पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो रेस्टोरेशन को लेके है, क्योंकि रेस्टोरेशन UN डिकेड, यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन चल रहा है, और पूरा डिकेड इसमें चलेगा रेस्टोरेशन पर। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी पूरे एक डिकेड 2030 तक चलेंगे। हमारी प्रोग्रेस उस दिशा में जो हमें करना है। और इस साल का पृथ्वी दिवस, जैसा मैंने निवेदन किया, एसेंशियली रेस्टोरेशन को लेके है। अब ये रेस्टोरेशन जो है, मूल रूप से जो इकोसिस्टम्स हैं हमारे, वो किस स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है या ह्यूमन मॉडिफाइड हैं या ह्यूमन डोमिनेटेड हैं। तो आपको ये जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि करीब करीब सिर्फ 3% पृथ्वी का जो हिस्सा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, जो ह्यूमन मॉडिफाइड नहीं है।
बाकी में इंसान के कदम भी पड़े हैं और इंसान के क्रियाकलापों का प्रभाव भी पड़ा है। कहने का मतलब है कि इस प्रभाव को अगर आप देखना चाहते हैं तो शहरों में सबसे ज्यादा प्रभाव है। थोड़ा गांव की तरफ जाते हैं तो ह्यूमन मॉडिफिकेशन वहां भी हुआ है, एग्रो इकोसिस्टम्स हैं, लैंडस्केप अलग तरह का है, लेकिन थोड़ा कम कठोरता है उसमें। फिर उससे आप थोड़ा आगे जाते हैं तो जंगलों की तरफ। तो जो रेस्टोरेशन की बात है, बहुत संक्षेप में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे घर से शुरू होती है। उदाहरण के लिए हम अपने घर में कितने पौधे हम लगा पाते हैं, खासकर जो लोग जिनके पास जमीन है या जिनके मोहल्लों में जमीन है या पार्क्स हैं, वहां हम कितने पौधे लगा पाते हैं। वो एक तरह से आप इकोसिस्टम के थोड़ा नजदीक जाना चाह रहे हैं। जब हम कोई पार्क क्रिएट करते हैं, अपने घर में छोटा सा गार्डन क्रिएट करते हैं, अपने घर में हम कोई छोटा ऐसा गार्डन क्रिएट करते हैं जिसमें वाइल्डरनेस के जो ट्रीज हैं उनको एक दो उगाते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को उगाते हैं, या इस तरह की जब हम काम करते हैं, तो ये एक लेवल है रेस्टोरेशन का। हम प्रकृति के थोड़ा नजदीक जा रहे होते हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा लैंडस्केप स्केल पर देखते हैं तो रिवर रेस्टोरेशन की बात आती है, स्ट्रीम्स जो हैं उनके रेस्टोरेशन की बात आती है, पॉन्ड्स जो क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारे इंसान ने, उनके रेस्टोरेशन की बात आती है। फिर हम थोड़ा और लैंडस्केप स्केल में आगे बढ़ते हैं तो एग्रो इकोसिस्टम, जहां हम खेती करते हैं, जहां हमारे लिए भोजन का इंतजाम होता है, वहां भी कंजर्वेशन संभव है। खेती के लिए जो अलग अलग तरह की जिन्स हैं, उनके जो ट्रेडिशनल कल्टीवर्स हैं, ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, उनका कंजर्वेशन एक अलग मसला है। इसके अलावा एग्रो इकोसिस्टम में जो ट्रीज हैं बाहर घर में हैं कौन कर दोस्तों या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो ये एक दूसरे लेवल का कंजर्वेशन है जो थोड़ा और मजबूत तरीके से हो सकता है। फिर जब हम और आगे जाते हैं वाइल्डरनेस में, उदाहरण के लिए कोई अच्छा फॉरेस्ट एरिया था, आज उतना बढ़िया नहीं बचा है, तो वहां पर फिर रेस्टोरेशन की स्ट्रेटजी बिल्कुल भिन्न होती है। वहां आप सघन वृक्षारोपण करते हैं, सघन झाड़ियों का रोपण करते हैं, उस एरिया को एक अलग तरीके से क्लोज करते हैं, तो नेचुरल रिजनरेशन, जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन है, वो आता है। तो आज हमें प्रत्येक स्तर पर रेस्टोरेशन की जरूरत है। अगर घर में, कई बार लोग कहते हैं कि अगर घर में मैं तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय लगा भी लेता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे थोड़ा सा मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएंगे मेरे परिवार के लिए, इसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल इस प्रश्न के उत्तर को देखने के लिए आपको एक दूसरी दिशा में चिंतन करना पड़ेगा। आप जितना अपने घर में औषधीय पौधों की वाइल्ड स्पीसीज को उगा लेते हैं, उतना आपको वाइल्डरनेस से कम लाना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपने वाइल्डरनेस में जिन प्रजातियों को उपयोग के लिए उखाड़ा होता या काट लिया होता, वो आपने अपने घर में ही मजबूती से लगा लिया। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर जैसे कल राजस्थान सरकार ने एक घर घर औषधि योजना प्रारंभ की है, जो रेस्टोरेशन को लेकर है एक अलग तरह के। राजस्थान के प्रत्येक घर में जहां पौधे उगाए जा सकते हैं, वहां 4 औषधियों के पौधे वन विभाग अपनी 665 पौधशालाओं में उगा करके उनको बांटेगा। और ये प्रजातियां ऐसी हैं जो जीवन रक्षक प्रजातियां हैं। आप में से जो लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ
प्रोफेसर तोमर साहब भी जुड़े हुए हैं। अगर मुझे तोमर साहब सुन पा रहे हैं तो जहां तक मेरा ध्यान है तो मुख्य रूप से अश्वगंधा, कालमेघ, गुडुचि और तुलसी, इनको घर घर ले जाने की एक स्थिति है। मैं आधा मिनट आपका ब्रेक लूंगा। मेरे एक कलीग जुड़े हुए हैं, मुझे आधा मिनट बात करनी होगी। दुबे साहब, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, एक वर्कशॉप में हूँ, जल्दी करता हूँ। तो इनका एक जो मूल बेनिफिट होगा, उनके होम गार्डन्स में हम इन प्रजातियों को रेस्टोर करेंगे। स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ा काम है ये, राजस्थान के 1.25 करोड़ परिवारों में तक पहुंचना। और ये मेरे विचार से देश की अपनी तरह की एक अनूठी योजना है। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, ये इस काल में, जो कोरोना काल है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज में से है ये। तो लेकिन ये मल्टी फंक्शनल है, केवल इसी के लिए काम में नहीं आती हैं। बहुत सारे ये इससे मदद मिलती है। बहुत सारे आप में से जो वैद्य हैं या जो दादी माँ के खजाने जिनके माथे में हैं, उनको पता है कि ये चारों औषधियां बहुत तरह के काम करती हैं। तो मेरा ये निवेदन होगा सभी से कि आप रेस्टोरेशन, पृथ्वी को पेड़ पौधों और झाड़ियों और शाकीय पौधों से सजाने की व्यवस्था घर से शुरू करें। हरा भरा घर बहुत सुंदर लगता है। आपके ध्यान में है कि अगर एक इंसान को जीवित रहने के लिए करीब 8 बहुत बड़े वृक्ष, जो भारी वृक्ष हैं, उनकी जरूरत होती है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीजन की आज क्या कीमत है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है। आप सभी लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की हालत। जब हम उसको सिलेंडर में भर के और अपना जीवन बचाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसकी क्या कीमत हो जाती है। ये वैश्विक हाहाकार जो मचा हुआ है, उसमें से आपको बहुत साफ हो रहा होगा। दूसरी बात, इसी में एक स्पीसीज जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप घर में इन सब चीजों को लगाइए, वो मूल बात ये है कि ये एक स्पीसीज नहीं है। एक स्पीसीज की अगर हैसियत देखनी है, कितना बड़ा अच्छा काम कर सकती है या बुरा काम कर सकती है, अगर बुरे दिशा में देखें तो एक वायरस पूरे विश्व को घुटनों पे लाके छोड़ रहा है आज। तो प्रकृति जब अपने विपरीत दिशा में जाती है, तो महज एक स्पीसीज, जो कोरोनावायरस फैमिली का एक वायरस है, जिसको आपने नया नाम दिया SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस, और जो कोविड-19 नामक बीमारी करता है, एक वायरस पूरे विश्व को घुटने में ला चुका है। तो इस सबसे छोटी प्रजातियों में से गिनती है इसकी। तो मेरा बहुत संक्षेप में यही आज का निवेदन है कि we should start conservation where we live and work to restore the planet Earth's ecosystems. We don't really need to always move to forests and rivers, and वो अलग काम है, अलग लोग करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, सामाजिक संस्थाएं अपना कार्य करेंगी, लेकिन मुझे और आपको ये काम करना जरूरी है कि हम अपने घर को वाइल्डरनेस के जितना नजदीक बना सकें उतना बनाएं। और तीनों लेयर्स की आप कोशिश करें। स्वाति जी, आपके घर में मैं आ चुका हूं और मुझे ध्यान है आपने बड़े खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए हैं, और आपकी माताश्री ने पास का जो पार्क है उसको भी बहुत अच्छा विकसित किया है। उनकी अपनी रुचि से उन्होंने वहां बहुत वृक्षारोपण किया है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं इसका कि एक व्यक्ति
चाहे तो क्या नहीं कर सकता। असल में परिवर्तन लाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। परिवर्तन तो मुट्ठी भर लोग लाते हैं। जो परिवर्तन की शुरुआत है वो एक मुट्ठी भर लोग लाते हैं, बाकी लोग तो साथ में चल देते हैं, साथ में हो लेते हैं। तो मेरा जो भी सम्माननीय अतिथिगण यहाँ जुड़े हुए हैं, सम्माननीय पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने घर में मल्टी फंक्शनल स्पीसीज लगाइए। मल्टी फंक्शनल मतलब जो बहुत सारे काम आ सके, उसकी दवाई भी बन जाए, वो आपको छाया भी दे सके, या आपको थोड़ी देर के लिए अगर आप ध्यान करना चाहते हैं अपने गार्डन में बैठ के, तो वो आपको आनंद दे सके। या आप लताएं लगाइए, बेलें लगाइए जो आपकी छत में पूरी जैसे गिलोय है, एक बार छत पे अगर चढ़ जाती है तो आपका एयर कंडीशनिंग का जो चार्ज है, खर्चा है जो, वो कम से कम 25% तक कम हो जाता है। बहुत सारे अध्ययन है इसमें, बहुत सारी साइंस है। जो भी बात मैं निवेदन कर रहा हूँ एक प्रमाण आधार के को देखते हुए आपसे कर रहा हूँ। तो मुझे आज यही कहना है कि कंजर्वेशन हमको घर से शुरुआत करना है, रेस्टोरेशन भी हमें अपने घर से शुरुआत करना है। और अंत में एक लास्ट बात कहूंगा कि बहुत कठिन नहीं है। असल में पौधे पहले हमारे माथे में लगते हैं। सबसे अनुपजाऊ जगह अगर पौधे उगाने की कोई है तो हमारा माथा है। मिट्टी में तो बड़ी आसानी से उग जाते हैं। हम अगर अपने माथे को इस दिशा में चिंतन मनन से तैयार कर लेते हैं कि हमें वृक्ष लगाने हैं, हरियाली करना है और पर्यावरण के प्रदूषण को नीचे करना है। मैं बहुत सारी चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पांडे साहब ने फरमाया था अभी। तो एयर का पोल्यूशन है, वाटर का पोल्यूशन है, तमाम तरह के ध्वनि का प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूट हो रही है। तो इन सब को जब हम एक बार देखते हैं और समग्रता में आगे बढ़ते हैं, तो पहले हमें अपने मस्तिष्क पर एक दिशा तय करनी होगी। बाद में मिट्टी, पानी, हवा, ये सब सुधर जाएंगे। तो आज जो पृथ्वी दिवस के अवसर पर आपने इस चिंतन को प्रारंभ किया, इसको एक दिवस मनाने के बाद कल हम भूल ना जाएं, एक फॉलो अप जरूर करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आपने मुझे याद किया, स्वाति जी, प्रोफेसर तोमर साहब, श्रीमती तोमर जी और सभी माननीय पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आने में विलंब हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you very much. And indeed, we should be thankful to you because ऐसे tough circumstances में और इतने busy schedule में you took out time for this event. That is indeed very appreciable, sir. And thanks a lot for your precious time. Thank you, sir. Thank you so much for the informative words. नमस्कार। I would request Dr. Nirmala Tomar to kindly present. She'll start her presentation. Meanwhile, I'll share her slides and we can have the presentation. हाँ Minute and share the slides so that ma'am can start with the presentation. मेरे वो दिलवा दे लैक्टोबैसिलस जैसी, और एक वो डाइजीपिन है 2 साल का है। Parmeshwari ji, you are kindly requested to mute yourself. Please mute yourself.
I hope the screen is shared. Everyone can see my screen over here? Yes. You can please start with the presentation. I welcome all of you on the occasion of World Earth Day 2021. Happy Earth Day to all of you. The theme of the 2021 is Restore Our Earth, inspiring people to grow more and more trees during the rainy season, like amla, nibu, santara, jamun, anar, aam, neem, etc. can be grown during the rainy season because it requires less efforts and they grow very easily. Then, like inspiration, I was inspired by my father because he was in army. He used to grow the plants and all, and I used to silently watch him, what he is doing, preparing the field, sowing the seeds, and then harvest time we used to pluck the fruits and vegetables. So I was inspired by my father. And similarly, my children are inspired by me. I've got the support of all my family members. My husband, all my children, they all support me in this pious work. So I would like to narrate some motivating stories of some successful people who have contributed to the protection and restoration of Mother Earth. Ansuyama, the lady from South Deccan Development Society. मेरी वाली भी तो भेजी है, हम दोनों भेजी है ना. Deccan Development Society has planted 2 million plants on barren, neglected lands. She was instrumental in setting up 24 forests across 22 villages in Telangana, for which she was awarded award from UNESCO. Ms. Thimmakka was awarded, next slide please. Ms. Thimmakka was awarded Padma Shri for planting and taking care of plants just like her own children. Though she was not having any issue, so she used to look after the trees just like her children, spreading the message of green environment. So we people are inspired by these people. 107-year-old lady can do all these things. Then why can't we do? Then next is Sikkim became the first Indian state to ban disposable plastic bags, single-use plastic bottles, thermocol plates, and glasses. First Indian state to be fully organic, no pesticides are being used. Banned firecrackers in 2014 to prevent air and noise pollution. So these are, Sikkim is a state which is going for the sustainable development. Then the Plastic Man of India, Professor Rajgopalan Vasudevan, Professor of Chemistry, Engineering College, Madurai, plastic waste like cups, plates, then this packaging material can be used to make the roads. He has used all these things for making the roads. This reduces the amount of bitumen that is used. It increases the impact value as well as durability. Now we come to the conservation of rivers. We worship the rivers, and unfortunately our rivers are really so much polluted. Ganges, all holy rivers, Yamuna, they are badly polluted. The water is so bad we cannot drink properly. So Eco Baba Balbir Singh cleaned 116 kilometer long river, that is the tributary of Vyas, and developed underground sewage system with the support of Punjab government. And basically he started the campaign, awareness campaign, involved the people, volunteers to clean the river. Now another thing which is more surprising is 4-year-old Rihansh. Next slide please.
Yes, keeping the beach clean is a child's play. I think the children should be involved by the parents in all these activities because they find fun in doing all these things. So this 4-year child Rihansh was spotted cleaning the Warsaw beach along with his father and all the volunteers. When children can do such things, why can't the big people take the initiative to clean the rivers and clean the beaches and all? Because we are educated people, we know we should do it. And once the initiative is taken, people themselves come and they help in this pious work. Now the next thing is degraded forest of degraded forest of Arabari forest, which was in West Bengal. Mr. A.K. Ajit Kumar Banerjee, Divisional Forest Officer, involved local people in protection of the forest, looking after, taking care of the forest, and 25% of the produce was given to the forest people, local people. So if we involve the local people, because local people are getting the wood from there, the fruits and everything, all sort of benefits, 25% benefit from the forest, and that is how the forest became lush green, and it was about 12.5 crores worth, 12.45 crores, which was forest. So local people should be involved because they can protect very well the place and they can look after the forest and all. So this was a successful experiment. Then the next degraded forest of Costa Rica forest, that was like earlier it was rocky, poor nutrient soil, but after dumping the these orange peels, this became very rich, lush green. The soil became richer. And here you can see in this slide, the one side, the portion of the forest which is degraded, the other is lush green forest. So if we take care of our forest, we take care of our environment, then naturally we are going to protect our forest. And I think all of us should take the initiative. Then the next is, yes, t-shirts. Yeah, okay, eco-friendly startups. T-shirts नहीं आया? पीछे चला गया क्या? हाँ. T-shirts are made from the recycled plastic bottles. Tons of what you say, million tons of these plastic bottles are dumped in the landfills in America and other countries also. So some companies from Saudi Arabia have come in front, and they have started producing the what you say, t-shirts from the plastic bottle. Plastic bottles are crushed. Here you can see the picture. Plastic bottles are crushed, then they made into fiber, and then the fine shirts are made, t-shirts are made. So this is very innovative idea. That is how we can reduce the plastic and use it for a purpose, beneficial purpose, and it requires 30% less energy in making these garments rather than the garments which we make conventional methods like polyester and all. So now here eco-friendly startups, this what you say, temple waste is being used for making charcoal-free incense sticks, agarbattiyan, organic vermicompost, which is made from the what you say that worm, earthworm, and then the biodegradable packaging material is also made from flower cycling technology. Like flowers are being used for all these purposes. So it is always better that we find out new startups, and the waste material can be used in this method. Then Haryali, we have started a project which is called as Haryali Go Green. So for that,
I think what we need, how we can develop the garden or anything. For that, first thing is composting. The compost need to be made, either you can make it on your own or you get it from the market. So main compost is coco peat, which is good for growing the plants. Then the next is vermiform compost, which is made out of earthworm and other littered leaves and all. Then the next is the natural compost, which is cow dung and the littered leaves and all. So we can grow the plants in this compost and all. Then the next thing is selection of plants. If we want to grow a garden, what sort of plants we should select? Like ornamental plants we can grow, like thuja is there, then what else is there, rukmani is there, these are all, Areca palm is there. All these are quite big plants, and when they require less effort, they grow very well. Then some plants we can grow by vegetative propagation, like you want to grow very fast, these plants, even in your pots and all you can grow. Like the spider plant is there, money plant is there, then mogra, jasmine, all these plants can be grown by vegetative propagation. One plant we make 5-6 plants by vegetative propagation, and very fast we can grow them. Even the rose can be grown by the cuttings and all. So we need to find out what plants we can grow in a garden and which require less efforts. And what you say, less these compost and all, they grow on their own. So these are the glimpses of flowers which are grown in a garden. Then we can also grow the flowering plants, seasonal flowering plants, ixora, godhal, roses, musenda, ticoma, jasmine, etc. Then the seasonal flowering plants like guldavdi, calendula, petunia, dahlia, dianthus, salvia, genda, phlox, pansy, etc. can be grown, which look beautiful also. The garden looks beautiful. And here you can see before the picture of the garden and after all efforts and taken, the garden is lush green and looking beautiful. All sort of plants, musenda and all. This is the garden of my home where we've grown the different plants, and the whole picture looks very lively, and I enjoy sitting there. Then glimpses of organic farming during lockdown. During lockdown, we've grown all these vegetables in our garden as well as in our home. All these. Then even this dhania, palak, and this what is called as ye jo pudina. All these are grown in our pots. So all this organic farming we are doing. And I enjoy doing it because somehow I have studied botany, and somehow I was much more interested in all these things, looking after the garden and enjoying the garden. Then all the we have certain events we have celebrated, like Earth Day 2013, the gathering, the children made the charts and all, recited poems, everything. So here all the charts, they are made by my daughter, younger daughter. She was also involved in this project. So she has prepared various, Shraddha, she has prepared various charts. They were displayed at various places, somehow to create awareness about how to protect our environment, how to make it beautiful, how to enjoy its, because these parks, they are the source of what you say, what you can say, it's lungs of the society, and they help in recharging the water as well as they provide oxygen, enriching the soil. So many things are there, climate changes, all these depend on this. So if we grow these plants,
all sort of activities children enjoy playing here. All events were, even the yoga was arranged here. Then in the end, I will say a journey of 1,000 miles begins with a single step. We have to take the initiative. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you so much. Thank you, Dr. Tomar. That was really indeed a very informative presentation. Being a daughter, I would like to share my experience that I'm an environmentalist and the entire credit goes to my mother. All the children, each and every member of my family is truly dedicated towards the effort of environment protection and conservation. So she's the source of inspiration. That was basically a park which is adjacent to our house. That was basically a barren piece of land, and everyone used to throw the litter. No one was really concerned about its you can say the ecosystem values, and all sort of criticism was also there once we tried to adopt the park. And it was all the sole efforts of my mother that the park was adopted and the plantation was done. Everyone, each and every member of the family took great care of that park, and eventually it got transformed into a lush green park. The pics were visible. I hope everyone enjoyed the presentation. And with these words, I would like to call upon Anjana Khilani ma'am for the next presentation. I have certain words for Anjana Khilani ma'am. When I was there during my stay at Jaipur, I met Anjana ma'am and I was really influenced with the piece of work she's doing. She goes to Bhal Bhavan also, and there also she is involving children, and she's very beautifully doing this act of gardening. She's made this Amlan Bagh, and she's the founder of the same. And with all her dedication, very beautifully, she is into this art of gardening. She's basically a gardening consultant, and she keeps uploading very informative videos. Today also she's going to share some videos with us, and they are very informative. And if you basically want to transform your house into a lush green garden, then you can definitely have good ideas from Anjana ma'am. Anjana ma'am, can we please have you here? Can you hear me, Swati? Yes ma'am, you're audible. Okay. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर तोमर को और साथ में स्वाति को हरियाली की शुरुआत करने के लिए। और 22 अप्रैल का दिन अर्थ डे के दिन पे शुरुआत हो रही है। और ये जरूरी नहीं है, जैसा कि सबने अभी बोला कि अर्थ डे एक दिन मनाना कोई मायने नहीं रखता, इसे हमें साल भर मनाना होता है और सालों साल मनाना होता है। ये जो हरियाली है ये एक दिन में नहीं आती, इसमें कई सालों की मेहनत होती है। तो थोड़ी सी मैं अपनी मेहनत की भी और जर्नी की भी बातें आपसे शेयर करती हूँ। शुरुआत जब हुई कि अपने घर का बगीचा बनाना है, हर एक की शुरुआत शायद ऐसे ही होती होगी जब जरूरत होती है, और उस समय नॉलेज कुछ नहीं था। लकीली जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन काम करता है और उसके जरिए कुछ नॉलेज हुआ। बॉटनी की भी हमें नहीं आती थी, जो किचन गार्डन एसोसिएशन से हमने सीखी। धीरे धीरे सीखते सीखते बाल भवन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि बच्चों के साथ काम करते हैं, थोड़ा बच्चों को बागवानी सिखाते हैं। बाल भवन बेसिकली बच्चों की एक्टिविटी सेंटर है और वहाँ बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आते हैं, तो बागवानी भी उसमें से एक शुरू किया गया। तब देखा कि बच्चे जितना डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, बड़े थोड़ा वक्त ज्यादा लगाते हैं। तो एक कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो जैसे ही इच्छा हुई कि बच्चों के साथ ज्यादा काम किया जाए, तो यहाँ का महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल ने घर बैठे ऑफर दे दिया गार्डनिंग टीचर बनने का। तो टीचर हम पहले से थे, गार्डनिंग का शौक हो गया, धीरे धीरे गार्डनिंग के टीचर बन गए। तो ये शौक और आगे बढ़ता चला गया, जैसे यूट्यूब शुरू हो गया। तो ऐसे ही सभी लोगों ने मिलके इंस्पायर किया कि जब आप इतना पढ़ाने के और गार्डनिंग के शौकीन हो तो गार्डनिंग के वीडियोस बना दो। तो वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और काफी शुक्रगुजार हूँ मेरी सब्सक्राइबर्स का कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत वीडियोस आगे बढ़े, स्पेशली लॉकडाउन में। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हाँ, मेरे स्कूल के दौरान जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी
कि बच्चों को जब मैं पढ़ाने गई गार्डनिंग, तो मैंने अपना पढ़ाने का तरीका बदल दिया। बड़ों को हम पढ़ाते हैं, हम पहले थ्योरेटिकल बातें बताते हैं, ये पौधा होता है, ये ऐसे उगता है, इस तरीके से इसको पालना है। लेकिन जब मैं स्कूल में गई, मेरे पास 6th से 10th तक के बच्चे थे, तो अब उस एज ग्रुप को समझाने का तरीका मैंने अपनाया कि मैं क्रिएटिव गार्डनिंग से शुरू करती हूँ। तो मैंने कहानी को पीछे से चलाया। पहले मैंने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाने बच्चों से शुरू किए, कभी ट्रेस बनाई, उसमें खिलौने लगाए। तो जब सुंदर सुंदर चीजें बच्चों ने देखी, तो धीरे धीरे फिर उनका प्लांट्स पे इंटरेस्ट आया कि मैम ये लगाएं तो कैसा लगेगा। तो उनको समझाना पड़ा कि जब ट्रे बना रहे हो तो सकलेंट्स की एक साथ बनाओ, ऑर्नामेंटल की एक साथ बनाओ, तो सब एक साथ सरवाइव करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगा और इंटरेस्ट भी आने लगा। तो यही तरीका यूट्यूब में बड़ों के साथ अपना लिया कि पहले खूबसूरत चीजें दिखा दो, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो अपने आप पौधे की तरफ आ जाएंगे खुद ब खुद। तो जब ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, तो जैसा हमने अभी सबने बातचीत की कि हमें 2 चीजों पे मेनली काम करना चाहिए, एक वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा सॉइल मैनेजमेंट। तो मैंने अपने वीडियोस के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि स्कूल का दायरा छोटा था। स्कूल के बाद बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़ गए, वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो इस दायरे को बढ़ाने का एक जरिया जो यूट्यूब था, वो काम कर गया, और स्पेशली लॉकडाउन में ज्यादा कर गया, क्योंकि जब इतना ज्यादा चला और कई बिगिनर्स ने लॉकडाउन में अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की, जिनके घर में एक भी पौधा नहीं था, उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान पौधे उगाने शुरू किए। और फिर उनसे जब मेरा कांटेक्ट होता रहा क्लासेस के जरिए, सेशंस और वर्कशॉप्स के जरिए, तब पता चला कि खाली बालकनियां आज पूरी ग्रीन बालकनीज में बदल चुकी हैं। तो जो भी कोई वीडियो डालती हूँ, तो उसका उधर से जवाब आ जाता है कि मैम ये हमने ऐसा बना लिया जैसे आपने बताया था। तो हर वीडियो का जो जवाब आ रहा है, उससे एक तसल्ली मिलती है कि दायरा थोड़ा बढ़ गया। चलिए, जितना काम हम यहाँ अपने लेवल पे छोटा छोटा कर पा रहे थे, अब दायरा थोड़ा और आगे चला गया। और यही कदम होते हैं, छोटे छोटे कदम जो आगे जाते हैं। अब जहां तक वेस्ट मैनेजमेंट और सॉइल मैनेजमेंट की बात है, हमेशा वीडियोस में मैंने इंसिस्ट किया कि केमिकल्स को ना डालें, सॉइल को कैसे इम्प्रूव करते रहें, खाद डालें, बायो एंजाइम्स डालें, किस तरीके से सॉइल को रिच बनाएं, सूखे पत्तों को बचा के रखें, सूखे पत्ते बहुत यूजफुल होते हैं, किस किस तरीके से उनको यूज करते जाएं। ये जो सूखे पत्ते हम झाड़ू लगा के बाहर निकाल के जला देते हैं कई लोग, उससे बचें। और वो ये जो सूखे पत्ते हैं, एक तरीके से ड्राई गोल्ड है, इसको किस तरीके से आप यूज करें, ये मैसेज वीडियो के तहत गया। कैसे घर में कंपोस्ट बनाएं, उसका वीडियो गया। तो काफी लोगों ने घर में उसके बाद कंपोस्ट बनाना शुरू किया। अच्छी बात यह है कि इवन बालकनीज में लोग एफर्ट कर रहे हैं और काफी कंपोस्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज जो सॉइल मैनेजमेंट के बाद मैंने ज्यादा कर वीडियोस में जिक्र किया, वो था वेस्ट मैनेजमेंट। कि ज्यादातर जो भी आपके घर का सामान फालतू जा रहा है बाहर, एक तो कचरे वाले के पास आपके घर से कुछ भी नहीं जाना चाहिए। जो सुबह-सुबह कचरा लेने आते हैं, हमारे घर से अगर कुछ जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कचरे वाला हमारे घर से खाली हाथ जाना चाहिए, लेकिन हाँ, कबाड़ी से हमें कुछ ले सकते हैं हम कबाड़ी से। तो ये मेरा सिस्टम रहा है। कचरे में जैसा कि अभी सबने अभी बात की कि वेट वेस्ट को कंपोस्टिंग में चला जाता है, ड्राई वेस्ट भी अलग तरीके से यूज़ हो जाता है। पत्तियाँ सारी कंपोस्ट में जाती हैं या गमलों में जाती हैं। और इसके अलावा जो टूटी टाइल्स, टूटी क्रॉकरी, कोई टूटा बर्तन, पीपे, टिन, कैन्स, घर की जो चीज़ें, बॉटल्स जो कुछ भी निकलती हैं, वो सब में हम कुछ भी उगा सकते हैं, जैसा मैम ने अभी बताया। तो बिल्कुल वही तरीका है कि हर चीज़ जब आप पौधे उगाने लग जाते हैं और आपको गमले खरीदने पड़ते हैं, तो अपने आप दिमाग चलने लग जाता है कि खर्चा करने के बजाय अच्छा है कि एक तेल के डब्बे में नीचे छेद करते हैं और उसमें पौधा उगा लेते हैं, दिक्कत क्या है? तो इस तरीके से आप दोनों काम कर रहे हैं, हम पैसे की बचत भी कर रहे हैं और ये जो प्लास्टिक घर से बाहर जा रहा है, वो बाहर भी नहीं जा रहा, उसी में चीज़ें उगाई जा रही हैं। तो हाँ, प्लास्टिक के को गमले को यूज़ करने का एक और वीडियो में मैंने शेयर किया कि क्योंकि बहुत पतला होता है प्लास्टिक का जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक कपड़े की लेयर लगा दें ताकि कुछ हमारे पौधे की जड़ों को ठंडक मिल सके।
तो वो भी आइडिया जो है वो पसंद किया सभी ने। और कुछ पिक्चर्स मैंने स्वाति के साथ शेयर की हैं। स्वाति इसमें दिखा सकती है कि किस तरीके से क्या-क्या चीजें, थोड़े बहुत जो भी वीडियोस बनाए हैं। इवन पड़ोसियों को भी पता है कि जब वो कुछ चीज फेंकते हैं तो वो मेरे से पूछ लेते हैं कि आंटी ये आपको चाहिए तो आप इसमें कुछ लगा लो। तो मैं उसके जरिए बताती हूँ कि कुछ-कुछ क्या घर के कंस्ट्रक्शन के बाद टाइल्स बच जाती हैं, उसको भी इस्तेमाल कर लिया। तो जब स्वाति बताती जाएगी, एक-एक पिक्चर दिखाती शेयर करेगी तो मैं बताती हूँ। Share the content. I'm having the pictures. Yes, ma'am. I'm having the pictures with me. और ये भी जरूरी नहीं है कि अपने ही घर का जो सामान हो। मेरा कबाड़ियों से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। तो मेरी नजर अक्सर सड़क के किनारे ये कुछ, वो जो सर कह रहे थे ना, ये दिमाग में कीड़ा लग जाता है गार्डनिंग के बाद, वो ऐसा ही होता है कि दिमाग में जब ये फितूर चलता है किसमें उगाना है, क्या लगाना है, तो नजरें सड़क पे रहती हैं या कबाड़ी के ठेले पे रहती हैं कि वहां से हमें क्या क्या मिल सकता है जिसमें हम कुछ उगा सकें। तो मेरी छत पे बाथ टब्स और वाटर कूलर के टैंक्स, ऐसी कई चीजें हैं जिनमें सब्जियां लगी हुई हैं। और ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, अगर बड़ा कर सके तो मैं एक के बारे में बताती हूँ। मैम ये मैंने शेयर किया है स्क्रीन, आई गेस फोटो हाँ, अब जाएगी। हाँ, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। अब ये एक बास्केट्स जो दिख रही हैं, 3 बास्केट्स, तो हैंगिंग बास्केट्स, ये मैंने उसमें से बनाई थी। जो हमारा आलू प्याज का जो एक स्टैंड होता है ना, 3 स्टैंड में 3 कंटेनर्स लगे होते हैं आलू प्याज के। तो जब वो टूट के टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसमें से ये 3 हैंगिंग बास्केट्स बना ली, एक लाइनिंग दे करके। एक पिक्चर इसमें ये एक्चुअली ओपन होने में टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मैं बताती जाती हूँ। एक 3rd नंबर पे जो स्क्रीन है वो टाइल पे वेस्ट टाइल थी और वेस्ट ही कुछ पत्थर थे, तो उसी से एक वर्टिकल गार्डन क्रिएट करने की कोशिश की थी। 4th नंबर पे जो पिक्चर है, जो इस तरीके से एक हाफ रिंग की तरह दिखाई दे रही है, ये पड़ोसी फेंक रहे थे। बुके आता है, किसी ने गिफ्ट में बुके उन्हें दिया था, जब फूल खत्म हो गए तो वो फेंक रहे थे, तो ये मेरे पास आ गया। इसमें मैंने बॉटल लगा करके, थोड़ा डेकोरेट करके बॉटल में पौधे लगा दिए और बहुत ही खूबसूरत पीस बन गया था। मॉस स्टिक बनाने के लिए भी ये नेक्स्ट पिक्चर है। तो मॉस स्टिक का भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप नारियल की जटाएं वेस्ट ना करें, उसमें से बना लें। इवन हमारी जो वाटर फिल्टर की कैंडल होती है वो भी बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है, तो अगर उस पर भी हम अपनी कोई क्लाइंबर चढ़ाते हैं तो उसको एटलीस्ट कुछ ठंडक मिलती है। और उसके ऊपर अगर बोरी रैप कर देते हैं या कुछ और ऐसी ठंडी चीज रैप कर देते हैं तो एक मॉस स्टिक आपको फ्री में मिल जाती है। एट द सेम टाइम कुछ वेस्ट आपके घर से नहीं निकला। ये छोटे छोटे सफेद कुल्हड़ हैं जो चाय पी के फेंक दिए जाते हैं, पेंट करके उनमें लगा दिया। आगे कुछ तेल के डब्बे हैं, आराम से छत पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आखिरी तो मुझे भी छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें भी ऐसे ही हैं, कुछ सॉल्ट के डब्बे हैं, कुछ बॉटल को बाहर पेपर मैशी से कवर करके डेकोरेट करके यूज कर लिया है। सो इन ऑल कहने का मतलब यही है कि जितना भी वेस्ट है उसको हम अगर थोड़ा सा भी डेकोरेट करके, नीचे क्या करना है, पौधा उगाने के लिए एक छेद चाहिए बस, ताकि पानी ड्रेन आउट